3, go. Welcome back to the channel, students. And today I am going to start with final accounts, intermediate first year, board of intermediate first year final accounts we will discuss, and we'll try to see that once we take the question paper, okay, once we take the question paper and we have this 20 marks problem, which is final accounts, and he'll give you the trial balance and he'll ask you to prepare final accounts of XYZ company based on so and so date. So mostly what I have seen students, as soon as they take paper, they just forget the format, the pro forma of the final accounts, and they get panicked. So here I am today to explain and give you some brief and some tips so that you attempt this 20 marks problem and get full marks in this particular section D. Okay, so just stay tuned and I'll try to emphasize on the important tips and techniques to be remembered, and based on these particular steps, I hope you will be able to justify this 20 marks in your final boards, and I hope it will be very clear to you. So one by one we will see this. Okay, first of all, you need to know about the pro forma of this particular final accounts, okay, which is of two parts. First, basically we will deal with T form of accounting, remember, where you have debit side and credit side. Remember this, first is T form of accounting, and then you have a balance sheet, which is a statement. Okay, this is also a T form of format as such, but it is not an account, so I am not writing debit credit here, because this is an account where you do trading here, and the part B, the half part, is profit and loss account. Okay, this is factory related. Say like this portion is trading account. Okay, factory related expenses, and say like the rest half is profit and loss account. Okay, you have office and office administration expenses. Okay, and then you have a balance sheet starting with liabilities and then assets. Okay, liabilities and assets. Amount, you can write amount in rupees, or you can just write the symbol amount in rupees. Here you have particulars, again amount, particulars, amount. Before writing this, remember headings are more important. Okay, you just need not write this balance sheet. First write this trading account like this, trading and profit and loss account of XYZ. Whatever name he gives, you need to write that particular trader name there, and then come here, write for the year ended, for the year ending, whatever date, for example 31st March 2019. Okay, and then write here balance sheet of XYZ, and here write as on 31st March 2019. ओके, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस वन पेज में होना है. जिस तरह आप आपके आंसर शीट देखेंगे, आंसर शीट आपकी इस प्रकार होगी, राइट. तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट करिए और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये साइड पे आप बैलेंस शीट करिए. तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होना और यहाँ पे ख़त्म हो जाना, वो आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिलेट करने में और पोस्ट करने में. यहाँ से आप ट्रेडिंग मत शुरू करिए और पीछे बैलेंस शीट, ऐसा मत करिए. यहाँ से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पेज पे एंड होगा. ठीक है, तो ये पार्ट जो है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे करेंगे. ये वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट समझो यहाँ पर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझो यहाँ पर आ गया, और ये वाला पार्ट बैलेंस शीट ऑन द नेक्स्ट पेज. क्लियर हो गया? हेडिंग्स आप देख लिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ. मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर. ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
for the year ended 31st March 2019 is given. First you need to see this particular transactions. जो भी आपके I'll send you the picture of this particular question as well. So here the trial balance will be given. Once the trial balance is given, you will also have the adjustments. Adjustments भी आपको दे देंगे यहाँ पर. और याद रखिए जो भी adjustments है वो adjustments को आपको पहले यहाँ पे टिक कर लेना है, क्योंकि ये transactions पर अपनों we have to do addition, like outstanding, if it is outstanding we need to add those particular items, और अगर prepaid है तो prepaid को minus करना होगा. तो वो सब adjustments जो भी है we have to see this. Here the problem says that from the following trial balance of Aman, so we have the name here Aman for example. Okay, so XYZ हटा के मैं क्या करूँगा, Aman. Prepaid trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019, balance sheet as on this particular date. So opening stock is given, also in the adjustment closing stock is given, prepaid insurance is given. So I will what I'll do, I'll make a point, or I'll mark that particular transaction that on insurance there is an adjustment. There is an adjustment for doubtful debts, so I'll mark on debtors. और commission पे भी मुझे adjustment है तो I'll mark commission. I'll mark on commission also, and also on furniture and machinery. Okay, these 1, 2, 3, 4, 5, 6 wages पे भी है, ठीक है. Total 5, 6 adjustments are there. These 6 adjustments I'll write down here. First is closing stock, which is valued at rupees 32,000. Closing stock which is valued for rupees 32,000. Okay, and prepaid insurance for rupees 500, outstanding wages rupees 1,000. Fourth is provide 5% provision on for doubtful debts. Okay. Fifth, commission receivable, which is for rupees 200. And sixth, depreciation on furniture at 5%. Seventh, depreciation on machinery at 10%. So these are the adjustments which are given. First we need to understand whatever this trading account is there. Trading account we need to adjust all the factory related expenses. So here in other words we will say that direct expenses we will record, and here we will record indirect expenses. Also in other words, trading related to the factory expenses, profit and loss account related to indirect expenses, that is office and administration expenses. On the other hand, on the credit side, these are all the direct incomes and all the receipts. Just remember the nominal rule: debit all expenses and losses, credit all incomes and gains when you are doing this trading and profit and loss account. जब भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट करते हैं तो ये एक यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस है. रिमेंबर ये याद रखिए कि डेबिट स्टार्ट्स विद 2, क्रेडिट स्टार्ट्स विद बाय, ये फॉर्मेट है, ठीक है. अब यहाँ पे ये 4 ट्रांजैक्शंस बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे लिखना है, इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते. ओके, यही फॉर्मेट में आपको लिखना होगा. पहला है ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस में अगर कुछ रिटर्न्स है तो परचेज रिटर्न्स यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा सेल्स लेस अंडरलाइन सेल्स रिटर्न्स एंड देन क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. नाउ ये फॉर्मेट आपको याद रखना है. ओपनिंग का क्लोजिंग, परचेज हुआ तो सेल तो होगा. ओके, नाउ विल सी व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक हियर. 15,000 इज द ओपनिंग स्टॉक. Purchases 90,000. I'll write in the inner column because there is some returns on purchases which is on the opposite side.
रिटर्न्स आज 2000, 88,000 के परचेजेस हो गए। कभी भी याद रखिए परचेज आपका डेबिट बैलेंस रहेगा और रिटर्न्स उसके ऑपोजिट साइड में मेंशन किया गया रहेगा हर बार। इन द सेम वे सेल्स भी, सेल्स है आपके 1,45,000 बट रिटर्न्स उसके है 2,000, रिटर्न्स है 2,000। ये आपको लाइन यहां पे खींचना है ऐसा, ठीक है। 1,43,000 यहाँ पे सेल्स होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको हर बार एडजस्टमेंट में देगा, 32,000 क्लोजिंग स्टॉक, 32,000 क्लोजिंग स्टॉक, और साइमल्टेनियसली आप एसेट्स में भी लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 32,000। तो ये एक एडजस्टमेंट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक इज रिटन ट्वाइस, वन इन TD, TD हियर स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड वन इन A, दैट इज एसेट। रिमेंबर एडजस्टमेंट्स आर रिटन ट्वाइस irrespective ऑफ देयर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। उसका जो नेचर होगा उस हिसाब से वो दो बार आएगा। अब जिस तरह यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक बार आ गया और एसेट्स में एक बार आ गया। ओके, तो ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट हो गया। साइमल्टेनियसली करते जाओ आप, और जैसा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा ना उसी तरह आप करते जाओ। पहले परचेजेस था लिख दिया, रिटर्न्स था वो भी लिख दिया, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश एट बैंक दो भी एसेट्स है, तो मैं सीधा सीधा पहले उसको एसेट्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली करने का फायदा क्या है। एक साइड आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहेगा और एक साइड बैलेंस शीट रहेगा। तो आप जब का जब जैसा आपको ट्रांजैक्शंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे वैसे ही आपको पोस्ट करते हुए जाना है। जैसा 2-3 चीज़ें हो गए यहाँ पे, परचेज रिटर्न हो गया, बचा कैश इन हैंड 8,000, 5,000, कैश एट बैंक 8,000। एसेट्स है, रिमेंबर आपको जो है ये ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। 1s, 10,000, 10,000 वो प्लेस में लिखना है, 1s, 10s, 100s, 1000, तो इसको एक एक रिमेंबर आपको ये याद रखना है कि आपको इस तरह नहीं लिखना है। अगर 8,000 है तो ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे, नहीं, आपको फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ये ख्याल रखते हुए लिखना है कि आपको ये 1s, 10s, 100s, 1000 और 10,000 के बेसिस पे ही लिखना है। ओके, after this particular transaction assets, cash in hand and cash at bank, the next adjustment is debtors। अब debtors पे मैं बिंदु भी लगाया, debtors है आपके 20,500, ओके, और इस पे प्रोविजन है, debtors है आपके 20,500 और इस पे 5% का प्रोविजन निकालो बोला। ओके, तो यहाँ पे आप debtors यहाँ से लिखना शुरू करिए। debtors है 20,500, उस पे लेस प्रोविजन एट 5%, ठीक है। 20,500 इंटू 5/100, जहाँ पे भी 5% देगा तो 5/100 करेंगे। ये 2 zeros कैंसिल, 205 इंटू 5, 5 5 25, 2 2 10, 1,025 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे 20,500 में से 1,025 यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। 5 7 4 19,475 इसका आपका क्लाइंट से पैसा आना था, वो बाकी होगा। डेटार्स आपके क्लाइंट से जिससे आपको 20,500 आने का था, बट आप एक 5% का प्रोविजन निकाल के आप पहले रख ले रहे, जो कि 1,025 है। 20,500 में से 1,025 आप यहाँ पे लेस कर लिए, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, लेस भी कर लिए, और ये लाइन ड्रॉ करके इसके बिल्कुल ऑपोजिट में उसका एक्चुअल अमाउंट लिख रहे हैं। तो हाउ मच डेटार्स वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ, 19,475 ओनली। बट एडजस्टमेंट 2 मरतबा लिखे जाएंगे, एक एसेट्स में और PD में। PD इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,025, राइट। ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फर्नीचर भी एसेट है। फर्नीचर पे यहाँ पर एक मार्क करे हुआ है कि इस पर एडजस्टमेंट है।
फर्नीचर है 13,000, ये है फर्नीचर यहाँ पर, और फर्नीचर का अमाउंट है 13,000, और ये बोल रहा है यहाँ पे डिप्रिसिएशन करने कितना 5%। तो यहाँ पे आ जाओ, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 13,000 लेस डेप्रिसिएशन एट 5%, यहाँ पे कर देना। 13,000 का 10% 1,300 हो गया, ठीक है। एक और बार करके बता दूंगा मैं, 13,000 इंटू 5% बोले तो 5/100 आपको करना होगा। ये दो जीरोस कैंसिल, 130 इंटू 5, 5 zeros 0, 5 15, कैरी 1, 5 5, 650 यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। 13,000 का फर्नीचर है, बट उसकी वैल्यू घट रही है 5% से, तो उसका अमाउंट होगा 650। नाउ वी हैव टू सी 13,000 माइनस 650, 12,000। कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लो, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, थोड़ा स्पीड ले मैं करना चाह रहा हूँ, एक ही वीडियो में ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको 13,000 में से ये माइनस करना होगा, तो 12 फर्नीचर का अभी वैल्यूएशन कितना होगा 12,350। तो ये भी हो फर्नीचर दो बार आएगा, एक एसेट्स में आ गया और पीडी में आएगा। पीडी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। 2 सिर्फ जो फर्नीचर का डिप्रिशिएट करे वही लिखेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 650। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर एसेट तो लिखे, एसेट में से जो वैल्यू घटी वो लिखे, आप एक्चुअल अमाउंट डाले एसेट का, फर्नीचर का अमाउंट लिखे और उसका जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा वो लिख के एक्चुअल अमाउंट डाल दिए। बट जो वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं एडजस्टमेंट्स के वही यहाँ पर लिख रहे, ठीक है। ये भी 5% पे हुआ और ये भी 5% पे हुआ, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। नाउ फर्नीचर के बाद सेम मशीनरी है, मशीनरी है कितना, मशीनरी इज 25,000, मशीनरी 25,000। मशीनरी पे भी आपको 10% करना है, ठीक है। तो 110 कैंसिल कर दो आप, इजी हो जाएगा, 2500 आएगा। मशीनरी 25,000 लेस डिप्रिसिएशन एट 10%, 2500, 23,500, 22,500। अब वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ लिख दो पीडी में। 2 डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपको एग्जाम में पूरा लिखना होगा एट 10%, वो हो गया 2,500, ठीक है। ये पोर्शन अभी ट्रेडिंग अकाउंट है और ये पोर्शन प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ओके। उसके बाद मशीनरी होगा, ओपनिंग स्टॉक तो लिख दी हम। रेंट जब तक फैक्ट्री रेंट नहीं बोला अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, रेंट खाली रेंट बोला या ऑफिस रेंट बोला तो वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट पे कोई मार्क नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देंगे आप। रेंट का अमाउंट है 4,500 हो गया। वेजेस है, वेजेस 11,000 है, वेजेस यहाँ पे आएगा, वेजेस 11,000, उस पर एक एडजस्टमेंट है लेस। क्या एडजस्टमेंट है वेजेस पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करना होगा। आउटस्टैंडिंग का दूसरा वर्ड ड्यू है। जो भी ड्यू है आपको वो तो आपको ऐड करके देना होगा ना, जो भी आप बिल पे कर रहे पहले का अगर कोई ड्यूज थे, ठीक है, वो ड्यूज को ऐड करके आपका खर्चा बताना होगा। तो 11,000 हम समझे वेजेस देना है, बट एडजस्टमेंट में मालूम पड़ा कि आउटस्टैंडिंग 1,000 और भी है जो हमको देना है, तो टोटल हम कितना देना होगा वेजेस का एक्सपेंसेस 12,000। बिकॉज ये एडजस्टमेंट में आया, इट विल बी रिकॉर्डेड ट्वाइस, एक टीडी में आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ गया, और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस प्रीपेड एसेट्स में आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस इधर आएगा। जितना आउटस्टैंडिंग हुआ उतना ही लिखेंगे अपन, 1,000 हो गया। ये भी वेजेस भी होगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफिस का ही करेगा। इंश्योरेंस है एक्चुअली 1,000, इंश्योरेंस 1,000 है, उस पर एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए यहां पर आउटस्टैंडिंग आया तो यहां पे ऐड करें, सॉरी यहां पे ऐड लिखना था, और प्रीपेड यानी लेस। प्रीपेड 1,000 का इंश्योरेंस था, बट 500 का ऑलरेडी हम पे कर दिए, ठीक है, एडजस्टमेंट में बताया। तो इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, सिर्फ
500 और प्रीपेड यहाँ पे एसेट्स में लिखा जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 500। ओके, ये एरो मार्क आप डालना नहीं एग्जाम में, ये क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे एरो मार्क डाला, ठीक है। इंश्योरेंस भी हो गया। कैरेज आउटवर्ड्स, रिमेंबर कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग में आएगा और कैरेज आउटवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज आउटवर्ड्स कितना है? कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स देखिए 2000 है, 2000। ओके, नाउ उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी होगा। अब ये प्रॉब्लम में बिल्स पेएबल दिया नहीं तो छोड़ दो। बिल्स रिसीवेबल 34,000। ओके, 34,000। सैलरीज, सैलरीज आप ऑफिस में देंगे एम्प्लॉयज को, सैलरीज पे कोई मार्क नहीं है, डायरेक्ट लिखना है आपको 8,000 सैलरीज। ओके, सैलरीज हो गया। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कैपिटल में से निकालेंगे। कैपिटल कितना है? इनर कॉलम में लिख के रख देंगे। कैपिटल है 56,000 लेस ड्राइंग्स आप अभी निकाल ले सकते 6,000, तो असल कैपिटल बचा 50,000। अब देखेंगे नेट प्रॉफिट अगर आया तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नेट प्रॉफिट। उसके बाद आपको ऑर्डर कॉलम में डालना होगा। ओके, कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स लिख देंगे यहाँ पे, क्रेडिटर्स 40,000। और क्या बचा? कमीशन, कमीशन दिस साइड। पीडी, पीडी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। कमीशन पे बिंदु लगे हुआ है या फिर मार्क करे हुआ है, उस पर मार्क है यानी वो एडजस्टमेंट है, उस पर 3,000 का कमीशन है और आउटस्टैंडिंग कमीशन ऐड करना होगा। रिसीवेबल वाला कमीशन कितना है? 200 रुपीज़, 3,200। ओके, ना आउटस्टैंडिंग फिर से कमीशन यहाँ लिख दो, आउटस्टैंडिंग कमीशन 200। ओके, सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे ख़त्म हो गए। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, डेटार्स पे डाउटफुल डेट्स निकाल लिए, कमीशन रिसीवेबल ऐड कर लिए, फर्नीचर एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन कर लिए। ये ट्रांजैक्शन सारे पोस्ट हो गए। आपको इसके ही जो है मोर देन 15 मार्क्स 16 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसको खाली टैली करना है, बिकॉज यहाँ पे जगह कम थी तो मैं यहाँ पे कम स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये हो गया, ये 5 4 5 6 7 1,75,000 राइट, 4 5 6 7 ओके 1,75,000। यहाँ पे भी 1,70,000 लिखना होगा। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। नाउ दिस पर्टिकुलर three amounts I have 15,000, 88,000 and 12,000. Now 10 11 1,15,000 I have, but this is debit, this is credit. Credit is 1,75,000. So therefore credit minus debit will be 1,75,000 minus 1,15,000. 60,000 is your gross profit. 60,000 ही होगा ना? Yes. 60,000 is the gross profit. 1,75,000 यहाँ पे आ गया, 1,75,000 यहाँ पे आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर होके बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आप कैरिड डाउन लिखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 60,000। ओके, ये होगा 63,200। उसमें से आप ये क्रेडिट साइड को माइनस करो, नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट निकाल के मुझे बताओ कितना नेट प्रॉफिट आया। वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐड करो आप, आपको ये लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का टोटल करो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।